Hello student, we are going to discuss about the chapter 6 life process, and this is video number 3. Dear student, we have discussed about autotrophic nutrition, and now we are going to discuss about the heterotrophic nutrition. Now, what is by hetero? Auto means self, the production of the food by the organism is takes place in the autotroph. Okay, autotrophic nutrition. But heterotrophic nutrition means such a nutrition which is animal depend on another animal. Animal depend on another animal for their food, and such type of nutrition is called heterotype of nutrition. Heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. हर किसी ने क्या है इन्वायरमेंट को एडजस्ट किया है. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. नाउ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनिमल. व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड. यानी वो ऑर्गेनिज्म कौन सा खाना खाता है इसके ऊपर उसका न्यूट्रिशन टाइप डिपेंड है. और फिर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल कैसी है इसके ऊपर भी उसका न्यूट्रिशन डिपेंड है. और तीसरी बात, इट इज़ हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. और वो फूड है वो किस तरह से ऑब्टेन करता है. ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसका न्यूट्रिशन टाइप यानी डिपेंड है. कौन कौन सी? टाइप ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. नाउ these three things play the main role in heterotrophic nutrition. Now, for example, whether the food source is stationary. What is by stationary? Stationary such as grass means एक ही जगह पे रहने वाला स्टेशनरी फूड हुआ ग्रास. और ए मोबाइल सच एज डियर, और इधर उधर भागने वाला चलने वाला फूड होता है. डियर होता है, गॉट होती है, और एनिमल होते हैं, हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, विच अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज बाय काऊ एंड लॉयन. एंड दैट्स वाई वी विल से दैट द न्यूट्रिशनल digestive tract we can say are different. Nutritive apparatus means our digestive tract of the cow is not similar to the lion, because the food of cow is stationary food and food of lion is mobile food. Okay, and that's why nutritive apparatus are different. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organism. Okay, this is also important thing. There is a range of strategy भी उनकी अलग अलग होती है by which food is taken in and used by organism. यानी वो फूड कैसा खाता है और कैसा उसको यूज करता है उसके ऊपर भी उसके रेंज डिपेंड होता है, अलग अलग डिप होता है. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट. द एग्जाम्पल आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पर्टिकुलरली saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. See here, what is by saprophytic nutrition? What happen in the saprophytic nutrition? Because nutrition is different type. Okay,
And first is here saprophytic nutrition. What is my saprophytic nutrition? Some the organism break down the food material outside the body. मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को, एंड देन एब्सॉर्ब इन द बॉडी. मीन्स रेडीमेड फूड इज एब्सॉर्ब. देर इज नो digestive tract. There is no need of digestive tract because already the food is digested outside. The food is not digested, we can say, but convert complex food into simple food atom that is absorb, यानी एब्सॉर्ब करने के लायक वो फूड बन गया है. ओके, एंड दैट्स वाई they some organism break down the food material outside the body and then absorb. Okay, example, what are the example of such type of nutritional nutrition? The fungi which is we always found on the bread, yeast, mushroom. These are the example of such type of nutrition, saprophytic nutrition. That is saprophytic nutrition. Now another type of nutrition. In other, take the whole food and break down it inside their bodies. See here. Take the whole food material and break down it inside their body. In saprophytic, first of all, complex food material turn into simple food material and then take it in their bodies. But in another example, the whole food material and take in their body and break it down inside their bodies. Just take example of lion. Lion क्या करता है, वो जो कुछ मिला है वो खा लेता है और बाद में वो डाइजेस्टेड करते बैठता है. हमारा भी वैसा है, हम खा लेते हैं बाद में डाइजेस्टेड करते हैं ना, बराबर है ना. तो अदर these are the example of such type of nutrition. See here, other take the whole material and break it down inside their body. पूरा मटेरियल ले लेते हैं inside the body and then turn the complex food into simple food, simple material. What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. यानी इस तरह से क्या लिया है अंदर में, खाने में क्या लिया है, इसके ऊपर की बॉडी डिज़ाइन डिपेंड होती है. तो ये सेकंड टाइप का हो गया. इसको हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? होलोजॉइक न्यूट्रिशन. दिस होलोजॉइक न्यूट्रिशन हम कहेंगे इसको. पहले को क्या कहेंगे? पहले को हम कहेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेकंड को होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहेंगे. तो होलोजॉइक में क्या हो रहा है कि व्हाट एवर देयर फूड is taken inside the body and then they convert complex food substance into simple food substance. And now third type of nutrition, that is parasitic nutrition. This is a parasitic nutrition. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition. This is third type of nutrition. See here, some other organism derive nutrition from the plants and animal. क्या करते हो?
उनका खाना मिलाते कहाँ से, एनिमल या प्लांट से, बट विदाउट किलिंग दे, वो उनको नहीं मारते। सी हियर, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल विदाउट किलिंग देम। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी यूज बाय द वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, पीला पीला होता है, टिक्स होती है, लाइस होती है, लीचेस होते हैं, टेप वार्म होते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, राउंड वार्म वगैरह, वो भी सब ये वार्म जो है हमारे बॉडी में रहते हैं वो होते हैं, बराबर है। कस्कुटा एग्जाम्पल है, ये क्या करते हैं कि हॉस्ट को मारते नहीं हैं बट उनसे खाना लेते हैं, ऐसा ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो हमने ये 4 टाइप न्यूट्रिशन के 4 टाइप देखे हैं हमने, कौन कौन से हम देखेंगे। न्यूट्रिशन है ये हमारा, और न्यूट्रिशन के हमने 4 टाइप देखे थे। जो पहला जो टाइप हमने जो देखा है ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन, सेकंड जो देखा है हमने सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा देखा था हमने होलोजॉइक न्यूट्रिशन, और हमने लास्ट वाला देखा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस तरह से हमने 4 टाइप की न्यूट्रिशन हमने याद देख ली। अब देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, the digestive system is different in various organisms. It is very important. In all organisms, the digestive system is not same. It is different. It is very variable according to organism. Why? Because their food is different. The way of taking the food is also different. For example, here is single cell organism, the food may be taken by the entire surface. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लेते हैं। The food may be taken in by entire surface, यानी पूरे बॉडी का सरफेस ही उसका मुंह बन जाता है। इंटायर बॉडी जो रहती है वो उसका क्या है, मुंह बन जा सकता है, वहाँ से वो खाना लेता है। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म। और जैसी जैसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाती है, जैसा जैसा ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है तो उसको स्पेशलाइज सिस्टम लगती है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। क्योंकि जब सिंगल सेल होती है तो एक्सपोज टू नेचर रहता है पूरा, और इसीलिए सब सिस्टम क्या है वो सिंगल सेल से चलती है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसी ही हमारे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं, सब सेल एक्सपोज नहीं होते, सब सेल नेचर में एक्सपोज नहीं होते, और लेकिन उनको खाना लगता ही ज़रूर है। एंड दैट्स वाई देर इज नीड, इट इज इमरजेंसी ऑफ डिफरेंट ऑफ परफॉर्म, इट इज ए इमरजेंसी to develop a special system for special thing, and that's why different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba का एग्जाम्पल दिया हमने, तो amoeba take food using the temporary finger like extension of the cell surface which is fused over the food particle forming food vacuole. ओके, यानी अमीबा क्या है, वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसने बनाए हैं जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, वो क्या कहता है, सूडोपोडिया वो फूड के ऊपर
चिपका देता है, बराबर है, और फूड वैक्यूल तैयार कर लेता है। यानी सूडोपोडिया जो है वो तैयार होने के बाद में उसमें फूड वैक्यूल तैयार हो जाती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, और वो जो फूड वैक्यूल है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। उसमें क्या होता है, हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है वो ब्रोकन डाउन होते हैं, सिंपल में हो जाते हैं। देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। वो सेल काय की बनी होती है, वो अमीबा काय का बना होता है, साइटोप्लाज्म। यानी अमीबा की जो सेल है उसमें क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। तो वो बाकी जो डाइजेस्टेड हुआ है, जो डाइजेस्टेड हुआ पार्ट है वो कहा जाता है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। मतलब वो खाना जो है, फूड है, वो क्या डाइजेस्ट हो गया फूड वैक्यूल में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। एंड सेम मटेरियल, अनडाइजेस्ट मटेरियल go toward the move toward the surface of the cell and thrown out। बाद में उसको क्या है, फेंक दिया जाता है। देखिए यहाँ ये अमीबा की डायग्राम है, न्यूक्लियस है उसको, और फूड पार्टिकल उसके आगे में यहाँ है, फूड पार्टिकल उसके आगे में है। बाद में क्या है, सूडोपोडिया तैयार हो गए हैं और उसको उसने थोड़ा वैक्यूल किया है, बराबर है। बाद में देखिए थोड़ा फूड वैक्यूल बन गई है, या क्या है, खाना डाइजेस्टेड हुआ है, और ये फूड पार्टिकल जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल में जो कुछ अनडाइजेस्टेड है वो क्या हो गया है, बाहर भी थ्रोन आउट कर दिया गया है। इस तरह से ये अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, और इसका इस तरह से डाइजेशन होता है। ये हो गया अमीबा की बात। अब दूसरा एक है ऐसा ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं, विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल हैज ए डेफिनेट शेप। अमीबा को डेफिनेट शेप नहीं था, इसको डेफिनेट शेप है। फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, यानी स्पेसिफिक स्पॉट से फूड क्या है, अंदर में जाता है, बॉडी में जाता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। और छोटे छोटे सीलिया होते हैं, सीलिया मतलब क्या है, जैसे ऐसे जो बाल रहते हैं छोटे छोटे, वैसी स्ट्रक्चर उनकी रहती है। वो मूवमेंट से क्या है, खाना मुंह में डाल देते हैं, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो सीलिया है ये पूरे बॉडी पे रहते हैं, पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे रहते हैं। इस तरह से यानी यूनिसेल्युलर होने के बाद में पैरामीशियम को स्पेसिफिक स्पॉट है जो क्या है, एक्ट एज ए माउथ की तरह एक्ट होता है। ऐसे भी कुछ एनिमल होते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिजाइन होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और डिफरेंट डिजाइन होने के कारण डिफरेंट सिस्टम भी ऑर्गेनिज्म में पैदा हुई रहती है। या अपन ब्रेक ले लेते हैं।